Welcome back. And we were talking about transferable skills and non-transferable skills. Let's see that what are the skill sets actually needed. आने वाले दिनों में हमें किन हवालों से अपने आप को डेवलप करना चाहिए. This survey was again picked from the Future of Jobs report published by World Economic Forum. In the past, 2020 को मैं past अब नाम दे रहा हूं. In the past, these 10 skills were taken up as the topmost skills अपने आप को professionally develop करने के लिए. और remember कि जब मैं professional development की बात कर रहा हूं तो I'm talking about a level and above. Okay? So the topmost skills required in 2020 were complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, and cognitive flexibility. These were taken up as the topmost skills for 2020. But if we could look at the trending skills for 2022, तो अब जो चीजें required हैं, they are analytical thinking and innovation, active learning and learning strategies, creativity, originality and initiative. अब इसकी जरूरत है. Technology design and programming, ये अब डिमांड किया जा रहा है. Critical thinking and analysis, complex problem solving, leadership and social influence, emotional intelligence, no doubt वो हमें दरकार है फ्यूचर में भी. Reasoning, problem solving and ideation, and systems analysis and evaluation. ये तमाम वो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं जो अगले 2 सालों में आप लोगों से डिमांड की जा रही हैं. If you are a professional or if you are a fresh graduate, either case आपको इन स्किल्स पर फोकस वो करना है. और 2022 में जो स्किल्स डिक्लाइन की तरफ चली जाएंगी, those are manual dexterity, endurance and precision, because machines are taking over. इसका बड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, because machines are taking over. Memory, verbal, auditory and spatial abilities secondary importance की हो रही हैं. Management of financial and material resources secondary importance का हो रहा है. आपके पास बेशुमार systems, बेशुमार आपके पास platforms available हैं जहां से आप इन तमाम चीजों को मैनेज कर सकते हो. Technology installation and maintenance जरूरत नहीं है. There are people who are reserved for these things. Let them do the task. Reading, writing, math, active listening, they are very good, wonderful skills, but for a particular level and above, शायद इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, because systems इतने इंटेलिजेंट आ रहे हैं कि आपके पास अगर प्रॉब्लम कुछ हो भी वर्बल कम्युनिकेशन की, तो उसको वो एडजस्ट कर देते हैं कुछ हद तक. इसी तरह मैनेजमेंट ऑफ पर्सोनल, क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी अवेयरनेस, कोऑर्डिनेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, विजुअल, ऑडिटरी एंड स्पीच एबिलिटीज, टेक्नोलॉजी यूज, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, ये सब चीजें अब सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की हो रही हैं. आई एम नॉट सेइंग दे आर जस्ट लाइक गेटिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की हो रही हैं. द फोकस इज गोइंग टू बी on these trending skills which we are looking in 2022. अब इन skills में the top skill जो हमने trending में देखी 2022 में, that is analytical thinking and innovation. Now let me show you कि analytical thinking and innovation से मुराद क्या होगी. जो मैंने यहां पर आपके लिए transferable skills में highlight किया हुआ है कि analytical and logic thinking skill means able to draw specific conclusions from a set of general observations or from a set of specific facts and able to synthesize information and ideas. Okay? अब ये जो particular skill आप देख रहे हो, जिसको मैंने यहां पर slide के middle में highlight किया हुआ है, that is the topmost skill required in the future. Analytical thinking and innovation. और innovation के बारे में याद रखिएगा कि innovation is basically the commercialization of invention. So excuse me, you should be knowing कि आपने क्या इन्वेंट किया है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो भी चीज आपने इन्वेंट की है, अब उसको आपने इनोवेट कैसे करना है, आपने उसको कमर्शियलाइज कैसे करना है.
ठीक है। सो उसके लिए जितने भी जदीद तकाजे, जदीद पैमाने, जदीद प्लेटफॉर्म, जदीद फोरम, जदीद नेटवर्क्स आप यूज करोगे, ऑब्वियसली उतना ही बेहतर आप इनोवेशन को कमर्शलाइज वो कर पाओगे। अब अगर एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन हमारे लिए 2022 की ट्रेंडिंग मोस्ट टॉप मोस्ट स्किल है, तो अब हम देखते हैं कि 2025 में हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। 2025 की जो फोरकास्टिंग है उसके बारे में अगेन अगर आप यहां पर देखो, एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन अगले 5 साल तक आपको कवरेज वो दे रही है। सो दैट मींस कि अब फ्यूचर, आज 1 जनवरी 2021 है, तो अब जो फ्यूचर हमें नजर आ रहा है वो फ्यूचर इस टॉप मोस्ट स्किल के अंदर हमें फोकस अपना सबसे ज्यादा वो करना पड़ेगा। ठीक है। और ये टॉप मोस्ट स्किल अगर आप नीचे टाइप्स ऑफ स्किल्स में देखो तो हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड, द लोअर बॉटम। टॉप मोस्ट यहां पे जो टाइप ऑफ स्किल्स आप देख रहे हो, दे आर प्रॉब्लम सॉल्विंग डिनोटेड विद दिस ब्लू कलर, सेल्फ मैनेजमेंट, देन वर्किंग विद पीपल, एंड देन टेक्नोलॉजी यूज एंड डेवलपमेंट। राइट। तो यहां पर अब हमारे पास जो एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, और उसकी जरूरत हमें सबसे ज्यादा है इन द फ्यूचर। और हम यहां पर देख रहे हैं कि 2025 तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक हमारी जो स्किल टॉप मोस्ट रहेगी वो यही है। दूसरी तरफ आप अगर जॉब लैंडस्केप को देखो, इट इज सेड दैट बाय 2025 न्यू जॉब्स विल इमर्ज एंड अदर्स विल बी डिस्प्लेस्ड। ये बहुत बड़ा वार्निंग साइन है, आई एम टेलिंग यू, कि new jobs will emerge and others will be displaced by a shift in the division of labor between humans and machines। और उस डिस्प्लेसमेंट से जो इफेक्ट हमारे पास आ रहा है, इस इफेक्ट में इस सर्वे के मुताबिक 97 मिलियन जॉब्स वुड बी क्रिएटेड, ग्रोइंग जॉब डिमांड उनकी होगी, एंड 85 मिलियन जॉब्स वुड बी लॉस्ट। जिसमें के अगर आप इसकी डिटेल को देखो कि डिक्रीजिंग जॉब डिमांड्स में डाटा एंट्री क्लर्क्स वुड बी लूजिंग जॉब्स, administrative and executive secretaries would be losing jobs, accounting, bookkeeping and payroll clerks would be losing jobs. Okay, so 85 million jobs decreasing trend पर जा रही हैं, 97 million jobs वो increasing trend पर जा रही है। और increasing trend में जो हमारे पास job nature demanded है, they are data analysts and scientists, artificial intelligence and machine learning specialists, big data specialists, digital marketing and strategy specialists. So these are the jobs which are having the growing trend. Now, according to the World Economic Forum's Future of Work report data, the percentage of core skills जो यहां पर अब हम देख रहे हैं, the percentage of core skills that will change by 2025 is 40%. ओके, 40% अगले 5 सालों में जो कोर स्किल्स हैं उसके अंदर एक चेंज डिमांडेड है, एंड 50% ऑफ ऑल एम्प्लॉइज विल नीड रीस्किलिंग बाय दैट टाइम। तो उनके लिए जरूरी होगा कि वो अपने स्किल सेट को वो इंप्रूव कर सके। राइट। सो दिस इज नॉट बेसिकली लाइक द डिफरेंस ऑफ दीज टू फिगर्स। ये जो हम यहां पर देख रहे हैं ये दो डिफरेंसेस नहीं है। ये न्यू जॉब्स रिलेटेड टू 95 मिलियन वैकेंसीज और 95 मिलियन जॉब पोस्ट वर्ल्ड वाइड हम फिगर्स कोट कर रहे हैं, उसकी बात की जा रही है। क्योंकि सर्वे के अंदर चूंकि दे काउंटेड द इंडस्ट्रीज एंड द कंपनीज फ्रॉम यूरोप, they counted the companies and industries from America, they counted the companies and industries from Asia, Middle East भी, South Asia भी, उन्होंने different regions जो है वो identify किए हुए थे अपनी इस रिपोर्ट के अंदर, जहां के collective data को हम यहाँ पर वो शो कर रहे हैं। तो it is not just the difference of 12 million, basically these are the people who would be lacking behind and those would be the people who will be coming up. All right. So यहाँ पर अब हम अगर 2025 के फिगर्स को देखें, I'll be sharing by the way this report with you, आप उसको डिटेल से जो है वो जरूर पढ़िएगा। So if 2025 तक हमें एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन स्किल की जरूरत है और हमारे सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी का होना वो सबसे इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, तो अब हम देखते हैं कि इस स्किल को कैलकुलेट कैसे करना है। आप कैलकुलेट करने के लिए मैं आपकी ये स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूं एंड आई विल बी टर्निंग ऑन अ पीडीएफ फाइल फॉर यू।
right here. I hope the file is visible to you now. Analytical thinking के लिए बेशुमार हमारे पास मेयर्स अवेलेबल हैं. उनमें से एक randomly मैंने एक मेयर पिक किया कि what type of questions can be asked in either in interview or in test, and what type of perspectives we are looking at when we are focusing upon the analytical interview questions. So इसकी डिटेल को थोड़ा सा देखिए. It is said that using these sample analytical skills interview questions to discover how candidates approach complex situations and evaluate information to reach decisions or solve problems. अब इस तरह के हमारे पास कई पर्सपेक्टिव्स अवेलेबल हैं. आप जॉब हायरिंग के अंदर भी इन स्किल्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, और अगर आप बिफोर ज्वाइनिंग अ जॉब आप खुद से कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि आइदर यू आर हैविंग दिस स्किल्स और नॉट, तो आप इन टेस्ट को गो थ्रू वो कर सकते हो. जैसा कि आपसे मैंने पर्सनैलिटी के बारे में एक टेस्ट कंडक्ट किया था जिसमें हमने पर्सनैलिटी की डायमेंशंस को, एग्रीएबलनेस, कंसेंसुअसनेस, एक्सट्रोवर्जन, हमने उसको कैलकुलेट किया था. बिल्कुल उसी तरह अब हम स्किल्स को इन्वेस्टिगेट वो कर रहे हैं. आप स्किल्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जैसे यहां पर वो आगे वाज़ह कर रहे हैं कि why you should test candidates analytical skills. It is said that analytical skills refer to the ability to gather data, break down a problem, weigh pros and cons, and reach logical decisions. Employees who have these skills help companies overcome challenges or spot issues before they become problems. तो प्रोएक्टिव होने के लिए हमें इस एनालिटिकल स्किल की जरूरत है, जो कि अगले 5 सालों में अकॉर्डिंग टू द जो हमारे पास रिपोर्ट है उस चीज की जरूरत होगी. अब इस मकसद के लिए आपको बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर भी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी. यहां पर आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस शेयर कर रहा हूं कि एनालिटिकल स्किल्स को चेक करने के लिए व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस वी नीड टू आस्क. या आप सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए भी यूज कर सकते हो और जॉब रिक्रूटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो. यहां पर कुछ एग्जांपल के तौर पर हम डिस्कस कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम but didn't have all necessary information about it in hand. What did you do? Okay. अब अगर हम like one-to-one interaction class setup में होते तो I would have been asking this question to all of you and I'll be demanding कि आप immediately इस question को respond करो कि आप इसके बारे में क्या जवाब दोगे. Right? But in this online session, मैं सिर्फ आपसे questions आपको दिखा रहा हूं. आप अपना analysis खुद करते रहिएगा कि are you able to respond to this question actively and rightly? क्या आप तमाम प्रॉब्लम्स की जो भी प्रॉब्लम कोट करोगे उस प्रॉब्लम के प्रोज एंड कॉन्स को क्या आप एसोसिएट कर सकोगे? क्या आप अपने सॉल्यूशन को प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट कर पाओगे कि आपने क्या सॉल्यूशन किया और उस सॉल्यूशन के अलावा और कौन से बेस्ट सॉल्यूशंस हो सकते थे? फॉर एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन को देखिए. हाउ डू यू वे प्रोज एंड कॉन्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन? ओके, अगर ये क्वेश्चन एकदम से आपको पूछा जा रहा है तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इक्विंग इन योर माइंड? That how do you weigh pros and cons before making a decision? अब इसको सुनकर कोई टर्मिनोलॉजीज आपके जहन में आ रही हैं, कोई कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में आ रही हैं, कोई मॉडल एंड थ्योरी आपके जहन में आ रही है. What is actually echoing in your mind? And we are actually interested कि आपका माइंड रिस्पॉन्ड क्या करता है. Likewise, look at the next question. If you had to choose between 2 or 3 options, how would you decide? For example, pricing, performance valuation, systems and training. उसमें से आप कैसे चूज करोगे? आपके पास लाइफ के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से प्रायोरिटीज क्लियर है कि नहीं? और जब तक आप चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाओगे आपके लिए डिसीजन मेकिंग वो डिफिकल्ट हो जाएगी. तो हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी लाइफ में, रिलेशंस में सेट करना वो बहुत जरूरी है. सो रिमेंबर कि इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं एनालिटिकल स्किल्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. अब ये ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी हो सकती हैं, या आपका जॉब इंटरव्यू का टाइम भी हो सकता है, या आपकी सेल्फ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशंस भी हो सकती हैं जिसमें कि आप अपने आप को भी खुद सेल्फ इवैल्यूएट कर पाओगे कि क्या आपका रिस्पॉन्स इज शोइंग दैट योर एनालिटिकल कैपेबिलिटी इज राइटली डेवलप्ड और नॉट. ठीक है. आपको पता है कि जैसे बेशुमार यूनिवर्सिटीज के अंदर भी पर्टिकुलरली एमबीए क्लासेस में जो पेडागोजी स्टाइल यूज किया जा रहा है दैट इज केस बेस्ड. ठीक है. तो डिफरेंट केसेस के अंदर प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके डिस्कशंस करवा के सॉल्यूशंस की तरफ जाने के मकसद में मेन आइडिया क्या है बैकएंड पर? द आइडिया इज कि आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी जो है उसको एनहांस किया जा सके.
ओके, बट नो डाउट एनालिटिकल कैपेबिलिटी के साथ साथ सब्जेक्ट नॉलेज का होना इज ए प्री रेक्विजिट. आप ये कभी मत समझो कि सिर्फ एनालिटिकल कैपेबिलिटी के साथ विदाउट नोइंग द डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट यू विल बी एबल टू हैव सर्वाइवल. ठीक है, तो आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए, और सब्जेक्ट नॉलेज होने के बाद नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि जहां पर अब आपको डिसीजन मेकिंग पोजीशन में वो हम रख सकते हैं. So this is how analytical skills are being investigated. ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा एंड यू विल कम टू नो कि किस तरीके से एनालिटिकल स्किल्स को हम इन्वेस्टिगेट वो करेंगे. यहां पर मैं इस डॉक्यूमेंट का शेयर ऑफ कर रहा हूं एंड आई एम मूविंग बैक टू द स्लाइड्स. सो दिस वाज द पॉइंट जहां से आपसे मैंने डिस्कस किया कि एनालिटिकल थिंकिंग जो कि 2025 तक फोरकास्टेड स्किल हमारे पास आ रही है, उसको इन्वेस्टिगेट हम कैसे कर देंगे. This is another very interesting outcome from the same survey, which is from Future of Job Survey 2018 conducted by World Economic Forum. सबसे पहले इसकी इंटरप्रिटेशन देख लीजिए कि आपने इन बार्स को इंटरप्रेट कैसे करना है. It is said that the bars represent the proportion of responses by companies, and the companies are not just from America, they are from all over the world. Okay, so the bars represent the proportion of responses by companies that stated that specific strategies were likely, equally likely or unlikely. ठीक है, जो strategies अभी हम यहां पर पढ़ेंगे उसमें chance of occurrence उनका कितना है. Some companies abstained from answering the question. In such cases, part of the bar remains blank and typically 0 to 1% is the graph above. Okay, अब यहां पर इसको बड़ा टेक्निकली देखिएगा. हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्टेड स्ट्रेटजीज टू एड्रेस शिफ्टिंग स्किल्स नीडेड और द स्किल नीड्स आर देयर बाय प्रोपोर्शन ऑफ कंपनीज. ओके, प्रोजेक्टेड स्ट्रेटजीज टू एड्रेस शिफ्टिंग स्किल्स नीड्स बाय प्रोपोर्शन ऑफ कंपनीज. अब इसमें 84% हमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है दैट इज लाइकली कि these companies, पूरी दुनिया में जो इन्वेस्टिगेट किया गया, these companies would like to hire new permanent staff with skills relevant to new technologies. Okay, and the 12% responded equally likely. तो हमारे पास 96% जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा है कंपनीज का कि उनकी जो स्ट्रेटेजी होगी इस न्यू स्किल सेट्स के हवाले से, that they would like to hire new permanent staff with skills relevant to new technologies. इसी तरह 95% हमें बता रहे हैं कि लुक टू ऑटोमेट द वर्क, कि दोज कंपनीज अराउंड द ग्लोब, साउथ ईस्ट एशिया की भी, मिडल ईस्ट की भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, और तमाम लेवल्स की, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज तमाम लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने इस सर्वे के अंदर पिक की. एंड दे सेड कि लुक टू ऑटोमेट द वर्क, तो द कंपनीज आर प्लानिंग फॉर दीज थिंग्स. अगला पॉइंट देखिए, रिट्रेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज. अब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को भी रिट्रेन करने की जरूरत क्यों है? बिकॉज दे माइट आर गोइंग फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट. सो सक्सेशन प्लानिंग के लिए, प्रोमोटेबिलिटी को बेहतर से बेहतर करने के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए, सो दे वुड बी फोकसिंग अपॉन रिट्रेनिंग एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज अबाउट द रिक्वायर्ड स्किल्स. इसी तरह एक्सपेक्ट एक्जिस्टिंग एम्प्लॉइज टू पिक अप स्किल्स ऑन द जॉब. That is another strategy which the companies are planning to go for. Outsource some business functions to external contractors. ये एक बड़ा ट्रेंड हमें पिछले दिनों भी देखने को मिला कि जिसमें बेशुमार जो इंटरनल बिजनेस ऑपरेशंस थे उनको आउटसोर्स कर दिया गया उन जगहों पर जहां से आप ज्यादा अच्छी क्वालिटी कम कॉस्ट के ऊपर हासिल वो कर सकते हो. और एक्सक्यूज मी, यही काम करते करते आपको पता है कि अमेरिकन इकोनॉमी इज मोर देन 85% सर्विस बेस्ड. तो 85% सर्विस बेस्ड इकोनॉमी जो ऑपरेट कर रही है वो कैसे सरवाइव कर रही है? फिर वो इसलिए सर्विस सेक्टर के साथ सरवाइव कर रही है बिकॉज उन्होंने अपना जो हार्ड वर्क था वो सारे का सारा ट्रांसफर कर दिया टू द कंट्रीज जहां पर उनको बेहतर क्वालिटी कम कॉस्ट के ऊपर वो अवेलेबल है. एंड दैट इज बेसिकली द लॉजिक ऑफ गोइंग फॉर आउटसोर्सिंग. सो बहुत सी कंपनीज वो आउटसोर्सिंग की तरफ चली जाएंगी और वहां से भी आपको अंदाजा होगा कि जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी, कि जॉब्स खत्म होंगी.
Likewise, hire new temporary staff with skills relevant to new technologies. तो contractual workforce जो है, that is going to be the norm of tomorrow. Hire freelancers with skills relevant to new technologies and strategic redundancies of staff who lack the skills to use new technologies. अब ये हमारे लिए बड़ा वार्निंग पॉइंट भी है कि जो लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे, जो लैग बिहाइंड कर रहे हैं, सो दे वुड बी टेकन अप एज रिडंडेंट स्टाफ एंड दैट रिडंडेंट स्टाफ वुड बी नो मोर. ओके, ग्रेजुअली उनके ऊपर जो है वो कट्स लगने शुरू हो जाएंगे. सो ओनली द हाई परफॉर्मर्स विद द राइट स्किल सेट्स वुड बी डिमांडेड. अब हमारा नेक्स्ट जो कंसर्न शुरू हो रहा है वो ये है कि स्किल्स और कंपिटेंसीज का आपस में क्या लिंक है. द रीजन बीइंग कि अब हमने कंपिटेंसी फ्रेमवर्क का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, और मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि स्किल्स एंड कंपिटेंसीज आपस में किस तरीके से एसोसिएटेड हैं. इट इज सेड दैट स्किल्स आर द स्पेसिफिक लर्न्ड एबिलिटीज, जैसा कि हमने ट्रांसफरेबल स्किल्स की बात की. स्किल्स आर द स्पेसिफिक लर्न्ड एबिलिटीज दैट यू नीड टू परफॉर्म अ गिवन जॉब वेल, and that is the reason कि skills are needed in employability. ठीक है, जबकि जब हम competency का expression use कर रहे हैं तो competencies on the other hand are the person's knowledge and behavior that lead to them to be successful in a job. So that is a typical difference between the skill and competency. तो competencies के अंदर no doubt skill sets involve हो जाती हैं, इसीलिए शुरू की स्लाइड में मैंने KSAOs इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन नाम वो competency का वो दिया था. और ऑब्वियसली आपका जो नॉलेज है, आपका जो बिहेवियर है, वो आपके स्किल्स के अलावा जो नॉलेज पार्ट है, जो पर्सनैलिटी पार्ट है, वहां से कवर हो रहा है. अब जब हम कंपिटेंसी की बात करते हैं तो हमारे पास एक यूनिवर्सल कंपिटेंसी फ्रेमवर्क जिसमें के 8 फैक्टर्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दैट इज काउंटेड. बिफोर आई स्टार्ट डिस्कशन ऑन द कंपिटेंसी, एक मैं एग्जांपल आपसे शेयर करना चाह रहा हूं. सपोज एक यूनिवर्सिटी के 2 ग्रेजुएट्स हैं, उन दोनों के पास सेम डिग्री है. सपोजिटली उन दोनों के पास जो उनका जो टाइम फ्रेम था वो भी सेम है. उन्होंने सेम कोर्सेज पढ़े, सेम इंस्ट्रक्टर्स से पढ़ा, क्लास फेलोज उनके वर सिमिलर. उनका सपोजिटली सीजीपीए भी सेम है. ओके, सो 2 ग्रेजुएट्स, 2 फ्रेंड्स हैविंग सिमिलर स्किल्स are applying for job. ठीक है, अब होता यह है कि it has been observed quite some time कि one of them might get a job at a higher level and the other person might not be able to get a job of that level. यहां पर इस एग्जांपल में आई एम कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, मैं सिर्फ जॉब के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को लेकर चल रहा हूं. अब हैविंग द सेम डिग्री, why one person is having an upper level job and why the other person is not able to have a better job, जो फर्क आ जाएगा वो उनके शायद स्किल सेट का नहीं होगा. बिकॉज अगर हम स्किल सेट की प्योरली बात करें तो उनकी एजुकेशन एक जैसी है, उनका डिग्री एक जैसी है, यूनिवर्सिटी की एनवायरनमेंट एक जैसी थी. जो फर्क आएगा वो फर्क आएगा उनकी कंपिटेंसी के अंदर. और कंपिटेंसी के फर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है नोन एज कंपिटेंसी फ्रेमवर्क, जिसमें हम लेवल ऑफ कंपिटेंसीज की बात करते हैं. ठीक है, लेवल 1 कंपिटेंसी, लेवल 2 कंपिटेंसी, लेवल 3 कंपिटेंसी. तो आमतौर पर 1 से 5 तक लेवल्स जो हैं वो कंपिटेंसी के डिफाइन वो किए जाते हैं. अब आफ्टर गोइंग थ्रू द यूनिवर्सल कंपिटेंसी फ्रेमवर्क आई विल बी शोइंग यू कि कंपिटेंसी के लेवल्स वो कैसे डिसाइड होंगे और उनमें किन चीजों को हम ऐड और किन चीजों को हम डिस्कस वो करते हैं. यूनिवर्सल कंपिटेंसी फ्रेमवर्क में हमारे पास जो 8 कंपिटेंसीज हैं, दे आर लीडिंग एंड डिसाइडिंग, सपोर्टिंग एंड कोऑपरेटिंग, इंटरैक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग, क्रिएटिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, एडेप्टिंग एंड कोपिंग, एंटरप्राइजिंग एंड परफॉर्मिंग. ये हमारे पास 8 यूनिवर्सल कंपिटेंसी फ्रेमवर्क के इंग्रेडिएंट्स हैं. और उसके बाद इनके ऊपर बेस्ड आगे फिर बेशुमार हमारे पास कंपिटेंसी डायमेंशंस जो हैं, आगे फर्दर उनकी जो डिटेल्स होंगी वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी. अब सपोज इसमें आप 3rd लेवल यूनिवर्सल कंपिटेंसी फ्रेमवर्क को देखिएगा.
थर्ड जो ग्रेड 8 में हमारे पास पॉइंट है उसको देखिएगा, जिसमें हम बात कर रहे हैं इंटरेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग। और उस इंटरेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग की अगर आप डिटेल में देखें तो हमारे पास 3.3 पर एक डिटेल आ रही है विच इज प्रेजेंटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है, मैं इस एक पॉइंट को हाईलाइट करके आपसे आइडिया शेयर करने लगा हूं कि कंपिटेंसी के जो लेवल्स हैं वो कैसे डिसाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आई विल बी डिस्कसिंग विद यू इन अ डॉक्यूमेंट कि कम्युनिकेशन विच इज ए कंपिटेंसी, कम्युनिकेशन के लेवल्स क्या होंगे, that how can we develop communication level 1 competency, communication level 2 competency and communication level 3 competency। होगी communication, लेकिन उसकी जो competency levels होंगे वो different होंगे। For that matter, I have to turn off this slide share और मैं आपसे दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर कर रहा हूं। I hope the next document is visible to you। यहां पर हम ह्यूमन रिसोर्सेज कंपिटेंसी मॉडल एक देख रहे हैं which was developed at University of Michigan। वहां पर जो कंपिटेंसी मॉडल डेवलप किया गया, इस मॉडल के अंदर हम लेवल्स ऑफ कंपिटेंसी को वो विजुअलाइज करेंगे। अभी जैसा आपको मैंने कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि कम्युनिकेशन कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंपिटेंसीज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफाइन किया जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट में यहां पर हमारे पास कुछ फंक्शनल स्किल्स विच आर अदरवाइज कंपिटेंसीज वो हम लिस्टेड देख रहे हैं। इसमें लीडरशिप भी है, इसमें आपके पास कम्युनिकेशन है, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। सो डिफरेंट स्किल सेट्स हमारे पास अवेलेबल है। आई एम क्लिकिंग ऑन कम्युनिकेशन और यहां पर अब हम कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में लेवल्स ऑफ कंपिटेंसीज को विजुअलाइज कर रहे हैं। लेवल्स ऑफ कंपिटेंसीज को एलैबोरेट करने से पहले आप सबसे पहले इस फैक्टर को डिफाइन करोगे जिसके बारे में आपने लेवल्स को डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इज इफेक्टिवली यूजेस, इसकी डेफिनेशन हम बना रहे हैं, इफेक्टिवली यूजेस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एफर्ट्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रेटजीज, इंफॉर्मेशन एंड इंस्पायरेशन दैट अफेक्ट द लिसनर्स इन द डिजायर्ड मैनर। ओके, अब ये हमारी एक कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन बन गई कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय कम्युनिकेशन। अब इस बात को जहन में रखते हुए लेवल 1 कंपिटेंसी देखिए और ये बात याद रखिएगा कि कंपिटेंसी फ्रेमवर्क्स आप जब डेवलप कर लेते हो तो कंपिटेंसी फ्रेमवर्क्स आपको हेल्प करते हैं राइट पर्सन को राइट जॉब पर एलोकेट करने के लिए कि मैनेजर मार्केटिंग और असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, इन दोनों में कम्युनिकेशन से रिलेटेड कौन सी आपको कंपिटेंसी रिक्वायर्ड है। दैट इज द क्वेश्चन व्हिच आई एम एड्रेसिंग टू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैनेजर मार्केटिंग एंड असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, सपोज दोनों एमबीए हैं, लेकिन उनमें जो फर्क होगा वो कंपिटेंसीज का होगा और वो कंपिटेंसीज का फर्क किस किस्म का होगा उसको आप यहां पर देखिए। कम्युनिकेशन में जब हम लेवल 1 कंपिटेंसी की बात करेंगे तो इट इज सेइंग demonstrates good listening skills by using appropriate body language when speaking with others। Okay, this is level 1 competency। level 1 में दूसरा पॉइंट देखिए, speaks clearly and can be easily understood by intended audience। Okay, बहुत अच्छी competency है, हम level 1 पे देख रहे हैं। नंबर 3rd पॉइंट देखिए, summarizes or paraphrases personal understanding of what others have said to verify understanding and clarify actions to be taken, outcomes expected। Okay, so this is level 1 competency। अगला देखिए, tailors the content of speech and written communications to the level and experience of the audience। Likewise, uses appropriate grammar and use of words in oral speech। तो आप level 1 competency के साथ हो, and expresses ideas and conveys information clearly and concisely in writing using concrete specific language and using pronunciation and grammar correctly। अब आप देखिए, ये तमाम खुसूसियात are wonderful, but ये तमाम खुसूसियात level 1 competency of communication को शो कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि if these are level 1 competency communication aspects, तो level 3 के अंदर फिर क्या होगा। मैं सेकंड लेवल को स्किप कर रहा हूं।
अब हम लेवल 3 की कंपिटेंसीज देखते हैं। लेवल 3 में वो कहता है कि है कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट ही, बट इन लेवल 3 डेमोन्स्ट्रेट्स अवेयरनेस ऑफ एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन स्टाइल। ठीक है, ये पहला फर्क आ गया। विद ए वाइड वैरायटी ऑफ कल्चर्स, अब अक्रॉस द बॉर्डर क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटीज, इसको भी हम शामिल कर रहे हैं। वाइड वैरायटी ऑफ ऑडियंस, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स एंड मैनेजमेंट लेवल्स। ओके, तो हमने उसके स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन को बाय डेफिनेशन वो ब्रॉड कर दिया है। अगला पॉइंट देखिए, ये आपको लेवल 1 कंपिटेंसी से हम एक स्टेप 2 स्टेप ऊपर लेकर जा रहे हैं। एक और बात इसमें याद रखिएगा, लेवल 3 डज नॉट मीन कि लेवल 1 उसमें काउंट नहीं हो रहा। लेवल 3 मींस कि इन एडिशन टू द अबव मेंशन पॉइंट्स, ये चीजें आप ऐड ऑन कर रहे हो। अब लेवल 3 कंपिटेंसी में क्या होगा, वो बात कर रहा है कंसिस्टेंटली कन्वेज कॉन्फिडेंस इन पब्लिक कम्युनिकेशन विद लार्ज ग्रुप्स। एंड नंबर 3, effectively identifies unique audiences and creates tailored communications of varying scope that produce measurable outcomes. So this is what you call level 3 competency. मैं फिर से आपको रेफर करना चाहूंगा, जो आपको मैंने एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन एचआरएम की बताई थी कि पुट द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो माइंड यू कि राइट पर्सन को जब हम टेक्निकली स्पीकिंग डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें उसके कंपिटेंसी लेवल को भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ताकि उसके मुताबिक आप उसका टेस्ट डिजाइन, ताकि आप उसके मुताबिक उसका इंटरव्यू वो कंडक्ट कर सको। सो जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आप एक अपर लेवल जॉब के लिए पूछ रहे हो, वो इंटरव्यू क्वेश्चंस आप एक लोअर लेवल जॉब के लिए नहीं पूछते हो। तो इसके बैकएंड के ऊपर जो रैशनैलिटी है, आई एम ट्राइंग टू डिस्कस विद यू दैट रैशनैलिटी। लेट मी डिस्कस विद यू अनदर कंपिटेंसी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसके ऊपर बड़ी डिबेट जो है वो हमारी चलती है, and that competency is about the leadership. ठीक है, अब जनरली स्पीकिंग, आप लोग रिसर्च के स्टूडेंट्स हो, जनरली स्पीकिंग तो यही कहा जाता है कि लीडरशिप इज लीडरशिप, लेकिन लीडरशिप की कंपिटेंसी लेवल्स क्या हैं? व्हाट इज लीडरशिप लेवल 1, व्हाट इज लीडरशिप लेवल 2, व्हाट इज लीडरशिप लेवल 3? ये चीज आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है। सो आई हैव जस्ट क्लिक्ड ऑन द लीडरशिप, तो ये मेरे पास लीडरशिप के लेवल्स आ गए। अब लीडरशिप के लेवल्स में, एंड माइंड यू आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स, I'm talking about leadership as a competency, और उस competency के levels जो आपको different jobs में वो required होंगे। अब यहां पर देखिए, leadership के context में हम सबसे पहले leadership को define करते हैं कि leadership would mean demonstrates corporate responsibility, administrative skill, as well as a commitment to and a vision for public service. Okay, ये हमने एक leadership को अपनी organization के मुताबिक define कर लिया। अब हम देखते हैं कि लेवल 1 लीडरशिप क्या है। अब लेवल 1 लीडरशिप का मतलब है, कीपिंग दिस डेफिनेशन इन योर माइंड, लेवल 1 लीडरशिप का मतलब होगा स्किल्ड इन सेटिंग प्रायोरिटीज एंड मीटिंग शॉर्ट टर्म टारगेट्स एंड गोल्स। ओके, दिस इज लेवल 1 लीडरशिप, स्किल्ड इन सेटिंग प्रायोरिटीज एंड मीटिंग शॉर्ट टर्म टारगेट्स एंड गोल्स। ओके, सेकंड देखिए, शेयर्स इंफॉर्मेशन फ्रीली एंड कीप्स अदर्स इन्फॉर्म्ड, shares resources between work groups. So this is another aspect in level 1 leadership. और ये अगर आप इसको फील करो कि ये हमारे पास जो फ्लोर मैनेजर है, जो हमारे पास फ्रंट लाइन मैनेजर है, ये उसकी एक्चुअली लीडरशिप कैपेबिलिटीज को हम देख रहे हैं। नंबर 3rd पॉइंट देखिए, encourages new ideas, creativity and innovation. नंबर 4th पॉइंट देखिए, quickly and accurately assesses situation and determines critical next steps. ओके, तो ये हमारे पास लेवल 1 लीडरशिप कैपेबिलिटीज डिफाइन हो गई। अब अगर हम लेवल 3 पर चले जाएं, तो दिस इज लेवल 3 कंपिटेंसी। अगेन हम बात लीडरशिप की कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अब हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट है, इट इज गेटिंग अ लिटिल डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, लेवल 3 इट इज सेड स्टेडफास्टली मेंटेन्स फोकस ऑन गोल्स इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। वहां पर हम सिर्फ बात क्या कर रहे थे, अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन दिखाता हूं। यहां पर आपका फोकस ऑन गोल्स इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, क्राइसिस मैनेजमेंट, इसकी बात की जा रही है। सेकंड पॉइंट में देखिए, ब्रीफली क्लैरिफाई ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड डिसाइसिवनेस इन ए क्राइसिस। ठीक है, तो ये आपके पास लेवल 3 की कंपिटेंसी है। जबकि लेवल 1 में हमने जो पॉइंट अभी देखा था, वो कहता है स्किल्ड इन सेटिंग प्रायोरिटीज एंड मीटिंग शॉर्ट टर्म गोल्स। राइट, तो आप कंपिटेंसीज को एलैबोरेट करते हो लेवल्स के अंदर,
और फिर डिसाइड करते हो कि किस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको किस लेवल की कंपिटेंसी वो रिक्वायर्ड है, और फिर उस लेवल की कंपिटेंसी के मुताबिक आप जब रिक्रूटमेंट अपना पूरा प्रोसेस लॉन्च कर रहे हो तो उसमें टेस्टिंग, उसमें इंटरव्यूइंग, इन तमाम चीजों को लुक आफ्टर वो किया जाता है। नो डाउट मैं थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड कॉन्टेक्स्ट में चीजों को एलैबोरेट कर रहा हूं, बट यू शुड बी नोइंग कि राइट पर्सन की डेफिनेशन वो किस तरीके से एलैबोरेट की जाती है। So this was about the competency framework. मैं दोबारा अब रेफर कर रहा हूं अपनी स्लाइड्स को। नेक्स्ट स्टेप जिस पे आपको मैं लेकर चलना चाह रहा हूं वो है डिफरेंस बिटवीन कंपिटेंसी एंड प्रोफिशिएंसी। अब कंपिटेंसीज हमने देख ली, सबसे पहले हमने देखा कि स्किल्स एंड कंपिटेंसी में क्या फर्क है। अब आपको मैं कंपिटेंसी एंड प्रोफिशिएंसी के फर्क में आप लेकर आ रहा हूं, बिकॉज वी नीडेड टू नो कि हमें सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं चाहिए, बल्कि हमें प्रमोटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट को भी वो देखना है। तो अब देखिए साइड के ऊपर कि प्रोफिशिएंसीज को हम कैसे एलैबोरेट करते हैं। इट इज सेड ए कंपिटेंसी फ्रेमवर्क, जैसा भी आपको मैंने एक फ्रेमवर्क दिखाया डिफरेंट लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। A competency framework defines the knowledge, skill, and attributes needed for people within an organization. Each individual role will have its own set of competencies needed to perform the job effectively. There is a value difference. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कि there is a value difference between competent and proficient. ठीक है, अब वो वैल्यू डिफरेंस क्या बता रहा है, वो कहता है कि while other refers to knowing a skill, competency can refer to bare minimum required for acceptability. अभी जो bare minimum required for acceptability है, that means employability. जबकि proficiency carries with it a level of mastery that is above the minimum. इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी डिस्कशन को इस तरीके से भी एलैबोरेट कर सकते हैं कि हमारे इस competency framework में the level 3 would be more closer to bringing in the proficiency. Okay? अब याद रखिएगा कि कंपिटेंसीज को हम 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वी हैव गॉट टेक्निकल कंपिटेंसीज, वी हैव गॉट कोर कंपिटेंसीज एंड वी हैव गॉट बिहेवियरल कंपिटेंसीज। और आप इसमें अपना सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो कि विच ऑफ द कंपिटेंसीज यू आर हैविंग मोर एंड विच आर द कंपिटेंसीज यू आर लैकिंग बिहाइंड। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निकल कंपिटेंसीज, it would include sustainability, culture, incident management, risk management, health and safety laws and all the legal aspects. ये टेक्निकल में काउंट होंगे। अगर हम कोर कंपिटेंसीज की बात करें तो योर कंपिटेंसी टू मेक अ स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये आपकी कोर कंपिटेंसीज हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट बिहेवियरल कंपिटेंसीज तो यू फोकस अपॉन स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, पर्सनल परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन एंड वर्किंग विद अदर्स। तो ये आपकी बिहेवियरल कंपिटेंसीज हैं। और हर एक कंपिटेंसी को कैलकुलेट करने के लिए और हर एक कंपिटेंसी का लेवल फाइंड आउट करने के लिए वी हैव गॉट टूल्स, वी हैव गॉट टेक्निक्स, वी हैव गॉट टेस्ट्स, जिसमें कि हम इन बातों को इवैल्यूएट वो कर सकते हैं। यहां पर हमारा जूम सेशन टाइम वो खत्म हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में प्लीज ज्वाइन कीजिए।